we are discussing the names of God series. और हम इस श्रृंखला पर मनन करते आ रहे हैं परमेश्वर के नाम. And the names of God series today is Jehovah Ra. और आज का जो शीर्षक है वह है उनका नाम यहोवा राआ. R-A space A-H. RA एक स्पेस और AH. With these names, we are getting to know about the title of God. और इन सब के द्वारा परमेश्वर की उपाधियों को हम जान रहे हैं. Through the title, we are going to know about Him. उनके उपाधियों के द्वारा उनके बारे में और हम जानेंगे. So we understand what type of God we are serving. तो हम ये जानते हैं कि किस प्रकार के परमेश्वर की उपासना हम करते हैं. In that series, we are coming to Jehovah Ra. और इसमें यहोवा राआ इस पर हम आ रहे हैं. This is taken from Psalms 23 verse 1. और ये भजन संहिता 23 का पहले वचन से लिया है. The Lord is my shepherd. यहोवा मेरा चरवाहा. Every time the word Lord appears, और हर बार जब ये यहोवा आता है ये शब्द, when it is capital L-O-R-D, और जब LORD सब बड़े अक्षरों में होता है, it talks about the Old Testament Yod He Vav He, which is Jehovah God. और ये पुराने नियम योद है वाव है जो यहोवा परमेश्वर उनके विषय में कहता है. So the verse number 1 says, the Lord is my shepherd, I shall lack nothing. और पहला वचन यूं कहता है यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी. Now we will just see how we have to say this in Hebrew. हम ये देखेंगे कि इब्रानी भाषा में इसे कैसे कहते हैं. When we say El, जब हम एल कहते हैं, it refers to God. ये परमेश्वर को संबोधित करता है. When we say Eli, जब हम एली कहते हैं, it refers to my God. ये मेरा परमेश्वर, ऐसा उसका अर्थ है. So Eli is the I, as we use in machine. Machine we say like that. Eli is the word, is the letter I. और एली में वो आई जो अक्षर है उसका उच्चारण ऐसे जैसे मशीन में आई का इस्तेमाल होता है. So when we are going to say my shepherd, जब हम कहते हैं मेरा चरवाहा, we cannot say Raha, we have to say Rohi. तो हम राहा नहीं कह सकते, हमें रोही कहना है. R-O-H-E-E-R-I, Rohi, like that we have to say. ROHI या ROHEE ऐसे उसका उच्चारण होना चाहिए. Glory be to God. परमेश्वर की महिमा हो. So what does the sheep need? तो उस भेड़ को क्या चाहिए? The sheep needs a shepherd. उसको एक चरवाहे की जरूरत है. There is a lot of misunderstanding with regard to sheep and shepherds. भेड़ और चरवाहे के विषय में बहुत सी गलत फहमियां हैं. Our God is a God who relates himself as a shepherd. हमारे परमेश्वर ऐसे जो अपने आप को एक चरवाहे के रूप में हमसे जुड़ते हैं. Now shepherds are not grown up men in Israel. और इस्राएल में जो चरवाहे हैं वह वयस्क आदमी नहीं. They are not grown up women. वह वयस्क औरतें नहीं. They are boys, school boys and girls of age 8, 10 or 12. और वह बालक और जो लड़कियां 8, 10, 12 वर्ष की ऐसी होती हैं. So whenever you think shepherd, just take away that mindset, oh that is a grown up man, grown up woman. Take away that, it is all small boys and girls. और जब आप चरवाहा इसके बारे में पढ़ते हैं तो अपने मन से निकाल दीजिए कि ये बहुत बड़े लोग मतलब पुरुष या स्त्री वयस्क लोग हैं, बट ये तो छोटे लड़के लड़कियां होती हैं 8-10 वर्ष की. What type of boys and girls they are? किस प्रकार के लड़के और लड़कियां हैं ये? Responsible boys and girls. जो बहुत ही जिम्मेदार हैं. They take the father's sheep and
take care of it and bring it back. और पिता के भेड़ों को लेकर जाकर वह बहुत ध्यान से वापस लेकर आते हैं। They take the sheep in the morning. और सुबह को उन भेड़ों को लेकर जाते हैं। When they take the sheep, और जब वह भेड़ों को लेकर जाते हैं, sometimes the next house will give 2-3 sheep. कभी कभी उनके पड़ोस के लोग भी उन्हें 2-3 भेड़ सौंप देते हैं। So from there 2-3 sheep has come. तो वहाँ से 2-3 भेड़ आई हैं। From other side another one house, another 2-3 sheep. एक दूसरे घर से और 2-3 भेड़। So like this they gather the sheep and take it. तो ऐसे सबको इकट्ठा करके वो उन्हें लेकर जाते हैं। So finally there are around 20 or 25 sheep which he is taking. तो आखिर में कुल मिलाकर 20-25 भेड़ को वो लेकर जाता है। The important point what you have to understand, यहाँ पर जो मुख्य बात आपको समझनी है, the shepherd is not the owner of the sheep. वह चरवाहा उन भेड़ों का मालिक नहीं है। Did you understand this very clearly? क्या आप इसे सही से समझ रहे हैं? The shepherd is not the owner of the sheep. वह चरवाहा उन भेड़ों का मालिक नहीं है। Who is the owner? कौन है उनका मालिक? The father is the owner. और वह पिता जो हैं वही है उनके मालिक। This shepherd is a person who will temporarily take care of the sheep. और ये ऐसा चरवाहा जो अस्थायी रूप से एक कार्य नियुक्त किया जाता है काम करने के लिए। Many pastors are threatening the sheep. बहुत से पासवान ऐसे भेड़ों को डराते हैं। Because of me only you got saved. Because of I did this to you, I did that to you. Like that they keep threatening the sheep. और ऐसे धमकाते हैं भेड़ों को कि मेरे ही कारण तुम्हारा उद्धार हुआ, मैंने ही ये काम तुम्हारे जीवन में किया। And they put lot of burden on the sheep. और उन भेड़ों पर बहुत वजन डाल देते हैं। This is not biblical. ये बाइबल के अनुसार नहीं है। The shepherd is nothing more than a appointed temporary carer. Take care. और ये चरवाहा अस्थायी रूप से एक कार्य नियुक्त करने से ज्यादा कुछ नहीं। Now this shepherd is not owning the sheep. ये चरवाहा भेड़ों का मालिक नहीं है। Glory be to God. परमेश्वर की महिमा हो। The Lord is the owner of the sheep. और परमेश्वर उन भेड़ों के मालिक हैं। So what is the work of the shepherd अभी then? उस चरवाहे का काम क्या है फिर? The only work. सिर्फ एक काम, The only work सिर्फ एक काम, to ensure sheep is eating the food. ये देखना है कि वह भेड़ पोषण करते हैं, Nothing else. और कुछ नहीं। Glory be to God. परमेश्वर की महिमा हो। Let us turn our Bible to the book of Ezekiel chapter 34 हेजेकियल की पुस्तक लेंगे, उसका 34 अध्याय, verse 17. उसका 17वां वचन। Ezekiel 34:17. हेजेकियल का 34 का 17। और हे मेरे झुंड, तुमसे परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, देख मैं भेड़ के बीच और मेंढों और बकरों के बीच न्याय करता हूँ। Glory be to God. परमेश्वर की महिमा हो। So now here God says, यहाँ पर परमेश्वर कहते हैं, I am going to judge between one sheep and another and between rams and goats. मैं भेड़ के बीच और मेंढों और बकरों के बीच न्याय करता हूँ। Now in Jerusalem something happens. यरूशलेम में कुछ होता है। Now many people bring the sheep. बहुत से लोग भेड़ों को लेकर आते हैं। Right from the time of Abraham this is happening. अब्राहम के समय काल से यूं हो रहा है। And they will be selling the sheep. और वो उस भेड़ को बेचते हैं। Now God is talking about a shepherd who sells the sheep. और यहाँ पर एक ऐसे चरवाहे के विषय में कहते हैं जो भेड़ को बेचता है। The person who sells the sheep does not care for the sheep. और जो उस भेड़ को बेचता है वह उसकी परवाह नहीं करता। Now what is his interest in the sheep? अभी उसकी दिलचस्पी क्या है उस भेड़ में? How much wool or how much that skin he will get. और उस भेड़ से उसको कितना ऊन मिलेगा, उसका कितना उसके शरीर से उसको वह मांस मिलेगा। How much meat
the shepherd will get. That is his interest. और वह उसी में दिलचस्पी रखता है, उसे कितना मांस, कितना ऊन मिलेगा। My dear child of God, मेरे प्रिय परमेश्वर की संतान, there is a need for us to identify the shepherd who is caring for, who is just for the sheep's benefit only. और हमें ऐसे चरवाहों की खोजना है जो सिर्फ उस भेड़ की भलाई के लिए हैं। My dear child of God, मेरे प्रिय परमेश्वर की संतान, sometime I see in the YouTube, कभी कभी मैं YouTube में देखता हूँ they are telecasting their Sunday service. और उनके रविवार की आराधना को टेलीकास्ट करते हैं। Okay, nothing wrong in telecasting the Sunday service. उसमें कोई गलत नहीं है, But at the same time, there is one message which is going down. लेकिन उसके साथ ही उसके नीचे एक ऐसा संदेश दिया जाता है, For sending tithes, this is the bank account number. और दशमांश भेजने के लिए ये बैंक का खाता है। What is the meaning of this? उसका मतलब क्या है? Now you will receive a tithe from a person whom you don't know. आप ऐसे मनुष्य से दशमांश पाएंगे जिसको आप जानते ही नहीं। How you can take like that? कैसे आप ऐसे ले सकते हैं? Then how you will pray for the person? तो कैसे आप उनके लिए प्रार्थना करेंगे? Without knowing a person whom any Tom, Dick and Harry will give tithes to you. और बिना कोई भी जाने क्या कोई भी आपको दशमांश ऐसे भेजेगा? My dear child of God, मेरे प्रिय परमेश्वर की संतान, be careful of the shepherd who is just needing you for benefit alone. और ऐसे चरवाहे से सावधान रहें जो आपको सिर्फ अपनी जरूरत के लिए वह आप पर दिलचस्पी रखते हैं। Glory be to God. परमेश्वर की महिमा हो। Now normally the shepherd boy or the shepherd girl will keep the eyes on the sheep. और ये चरवाहा लड़का या लड़की अपनी आंखों को भेड़ों पर टिकाए रखते हैं। From somewhere they are seeing the sheep, कहीं से वह उस पर नजर डालते रहते हैं, and when he wants to take the sheep with him, और जब वो उनको अपने साथ ले जाना चाहते हैं, he will be walking down the hill and coming. और वह पहाड़ से नीचे उतर कर आते हैं। From coming from far itself, he will be calling the name of the sheep. और दूर से ही वह उन भेड़ों को पुकारते हुए आता है। And he will keep one name for one sheep. एक एक भेड़ का एक एक नाम वो रख देता है। Chantu, चंटू, Bintu, पिंटू। like this when he is calling, और ऐसे जब वो बुलाते हैं, that sheep will jump immediately, very excited. और वह भेड़ बहुत ही उत्साहित होकर वह ऐसे कूदना शुरू करती है। So that sheep will think, yeah, my shepherd is coming. और उसे मालूम पड़ जाता है कि मेरा चरवाहा आ रहा है। And all the sheep will start jumping. और वह सारे भेड़ जो है वह उछल कूद शुरू करते हैं। What is our Lord Jesus Christ telling? हमारे प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं? My sheep know my voice. मेरी भेड़ मेरी आवाज को जानते हैं। The Lord's voice the sheep will know. और प्रभु की आवाज को भेड़ पहचानेंगे। So when the sheep hears the voice, all will come near the shepherd and it will start walking. चरवाहे की आवाज सुनकर सब उनके करीब आते हैं और उनके पीछे हो लेते हैं। But the false shepherd, his voice sheep will not know. लेकिन जो झूठे चरवाहे हैं उनकी आवाज को भेड़ नहीं पहचानेगी। Let us read again Ezekiel 34:17. एक बार फिर से हेजेकियल का 34 का 17 पढ़ेंगे। Yes. और हे मेरे झुंड, तुमसे परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, देखो मैं भेड़ के बीच और मेंढों और बकरों के बीच न्याय करता हूँ। Glory be to God. परमेश्वर की महिमा हो। God is telling, परमेश्वर कहते हैं, I will judge. मैं न्याय करूँगा। I will judge between one sheep and another sheep. और मैं भेड़ों के बीच न्याय करूँगा। Now there is a big church. एक बड़ी कलीसिया है। Many people are there. बहुत से लोग हैं वहाँ पर। But some people consider themselves important. लेकिन उनमें कुछ लोग अपने आप को बहुत ही महत्वपूर्ण समझते हैं। We are the elder, we are the senior, we want all the importance. और हम ही वरिष्ठ हैं, हम ही
बड़े पुराने हैं, यहाँ पर हमें वह मुख्यता चाहिए। So they will have some titles for themselves. तो अपने आप के लिए कुछ उपाधियां रख लेते हैं। Now those are the people who says for every decision they have to be और consulted. वो ऐसे लोग जो कहते हैं कि हर निर्णय में उनके साथ सलाह की जानी चाहिए। So when there is a program, I have to sit in the pulpit. They will think. तो जब कोई कार्यक्रम होता है, मुझे उस पुलपिट पर मुझे बिठाना चाहिए, In the stage, I want to sit. और स्टेज पर मुझे बिठाना है। I will sing. मैं गाना गाऊंगा, I will do all the important work. और मैं ही सब मुख्य कार्य करूंगा। Now these people are the people which are putting the other people down. और ये ही है जो दूसरे लोगों को बहुत नीचा दिखाते हैं। So God is telling, I am going to judge between the sheep and the sheep. और परमेश्वर कहते हैं, मैं भेड़ में मैं न्याय करूंगा। If the word of God is not going to another sheep, the other person will be responsible. तो अगर कोई वचन एक भेड़ तक नहीं पहुंचता, तो वो दूसरा मनुष्य इसका जिम्मेदार हो जाता है। Glory be to God. परमेश्वर की महिमा हो। Some sheep are becoming fat, और कुछ भेड़ मोटे हो जाते हैं, but the other sheep are not becoming fat. लेकिन बाकी भेड़ मोटे नहीं होते। In some churches, और कुछ कलीसियाओं में some people decide how they need to have dance, how they need to have lights, how they have to do many things. और ऐसे बहुत से बातों का निर्णय लेते हैं कि कैसे लाइट्स डालने हैं, कैसे वहां पर डांस होना चाहिए, क्या क्या सजावट करनी है। And some people who want to hear the word of God, they are being crushed and put down behind. और कुछ लोग जो परमेश्वर का वचन सुनने में ही दिलचस्पी रखते हैं, उन्हें बहुत कुचला जाता है। Now the sheep has a habit, अभी भेड़ को एक आदत है, when there is food, it will walk directly on the food. और जब कोई खाना आगे होता है, वह सीधा उस पर से चलकर जाता है। After it finishes drinking water, it will walk on that water itself and go. पानी पीने के बाद उसी में अपना पैर रखकर निकल जाता है। So when the sheep is keeping legs on that water, और जब वह भेड़ उस पानी पर अपना पैर जमाती है, and it becomes a muddy water, और वह बहुत मैला हो जाता है। now the problem is the next sheep cannot drink. इसका समस्या ये कि अगला जो भेड़ आ रहा है, वह उसे नहीं पी सकता। So what will happen that time? तो उस समय क्या होगा? Ezekiel chapter 34 verse 21. और एजेकियल का 34 का 21वां वचन पढ़ेंगे। तुम जो सब बीमारों को पांजर और कंधे से यहाँ तक ढकेलते और सींग से यहाँ तक मारते हो कि वे तितर बितर हो जाती हैं। Glory be to God. परमेश्वर की महिमा हो। The sheep is hitting between itself. और भेड़ आपस में एक दूसरे को ढकेलते हैं। So one sheep, weak sheep, is going behind, तो एक जो निर्बल है वो पीछे की जाती है, and some sheep try to come front. और कुछ भेड़ आगे आने की कोशिश करती हैं। My dear child of God, मेरे प्रिय परमेश्वर की संतान, you are part of a church, आप एक कलीसिया का हिस्सा हैं, and you are a very senior member. और आप बहुत ही एक वरिष्ठ सदस्य हैं। Understand, take care of the new person. और ये देखिए कि आप नए लोगों को संभालें। They have a doubt, you ensure you answer that doubt. उनको कोई शक है तो आप उनका संदेह दूर कीजिए। And when you give importance to all the people. और जब आप मुख्यता दें तो सबको बराबर से आप उन्हें संभालें। If you get the food, make sure that all the other people also get the food. अगर आपको खाना मिले, आप ये देखें कि सब लोगों को मिला है। Glory be to God. परमेश्वर की महिमा हो। Now there should not be any fight within the sheep itself. और भेड़ों के बीच में आपस में कोई लड़ाई नहीं होनी चाहिए। If suppose that happens, और अगर ऐसा होता है, whose responsibility it is to solve the problem? किसकी जिम्मेदारी है कि उस समस्या का हल करें? The shepherd has to come and solve the problem. चरवाहे को आकर उसे सुलझाना है। In some churches, कुछ कलीसियाओं में one person speaking about another person speaking about another person, एक दूसरे के बारे में बात करता है, दूसरा तीसरे के बारे में बात करता है, and one person doesn't come to church afterwards. और उसके बाद एक
कलीसिया आना ही छोड़ देता है। Why? क्यों? Because somebody else has spoken something against them. क्योंकि किसी ने उनके विरुद्ध कुछ बात की है। The shepherd is keeping quiet. चरवाहा बिल्कुल चुप है, The shepherd is not doing anything. वह कुछ नहीं कर रहा। My dear child of मेरे God, प्रिय परमेश्वर की संतान, within the sheep somebody might be a false person. और भेड़ों के बीच कोई धोखेबाज हो सकता है, झूठा हो सकता है। In 12 sheep were there. 12 भेड़ थी, There was one Judas Iscariot who was a goat inside. और उसके बीच में एक बकरा था जो था यहूदा इस्करियोट। My dear child of God, मेरे प्रिय परमेश्वर की संतान, some people are always wanting to be on the high place. हमेशा कुछ लोग ऊंचे स्तर पर ही रहना चाहते हैं, Some people always want to be looking at other people down. और हमेशा दूसरों को नीचे ही देखना चाहते हैं। Some people always want to say that I want to be the leader always. और हमेशा ये कहना चाहते हैं कि मैं ही प्रधान या मैं ही अगुवा बनूंगा। Glory be to God. परमेश्वर की महिमा हो। What is the job of the shepherd? चरवाहे का काम क्या है? Only one task. सिर्फ एक ही कार्य, Only one task. सिर्फ एक ही कार्य मुख्य, And that task is to give food and water to the sheep, nothing और else. वह है कि अपने भेड़ों को वह पोषण और पानी दे। You have to remember the discussion between Jesus and Peter. तुम्हें यीशु मसीह और पतरस के बीच की बातचीत को स्मरण करना है। Do you love me? क्या तुम मुझसे प्रीति रखते हो? You know I love you, Lord. आप जानते हैं मैं आपसे प्रीति रखता हूँ प्रभु। You will feed my sheep. मेरे भेड़ों को चरा। Do you love me? क्या तुम मुझसे प्रीति रखते हो? Yes, Lord. You know I love you. हाँ परमेश्वर आप जानते हैं। Go and feed my sheep. जाके मेरे मेमनों को चरा। Feeding my sheep is the priority. और मेरे भेड़ों को चराना ही मुख्यता है, मुख्य काम है। In Ephesians chapter 4, इफिसियों के 4 में God is telling, परमेश्वर कहते हैं, I have given you apostles, मैंने तुम्हें प्रेरित दिए हैं, prophets, भविष्यद्वक्ता दिए हैं, evangelists, प्रचारक दिए हैं, pastors, पादरी दिए हैं, teachers. और शिक्षक दिए हैं। What is the work of all the people? इन सब लोगों का काम क्या है? The work of all the people is to feed the sheep. और इन सब का काम यही है कि भेड़ों को पोषण देना, There is no other work. और कोई काम ही नहीं। For all the 5 category of people, और ये जो 5 समूह के लोगों के लिए, do you love me? क्या तुम मुझसे प्रीति रखते हो? Go and feed my sheep. मेरे भेड़ों को चरा। Now we have to equip ourselves to feed other people. और हमें अपने आप को तैयार करना है कि लोगों को पोषण दे सकें। Glory be to God. परमेश्वर की महिमा हो। In some churches, the pastors are involved in a job और कुछ कलीसियाओं में पासवान इस काम में जकड़े होते हैं that I want to make my rules and regulations, and I want to make everybody look alike. और मैं अपने नियम यहाँ पर लागू करना चाहता हूँ और सब लोग एक समान दिखाई पड़े। It is not possible. ये मुमकिन नहीं है। Everybody's growth is at various level. और हर एक का जो विकसित होते हैं अलग अलग स्तर पर होते हैं। Now in some churches if you go, अगर कुछ कलीसियाओं में आप देखेंगे, they say, वह कहते हैं, yeah, in our congregation actually our procedure is like that. और हमारी कलीसिया के सदस्यों में हमारा नीति और जो नियम है इस प्रकार है। I have heard many of this. मैंने कई जगह पर ऐसा सुना है। No. In our congregation the rule is like this. नहीं, हमारी जो कलीसिया है वहाँ पर ऐसा ही नियम है। Now there is a problem and there is a disturbance which is coming inside. और यहाँ पर कुछ समस्या, कुछ असमंजसता आती है। Now if a person is trying to make the sheep stand in a line, अगर कोई किसी भेड़ को एक पंक्ति में खड़ा करने की प्रयास करता है, it is impossible. बिल्कुल नामुमकिन है।
You can try if you want. आप कोशिश करके देख सकते हैं। If you want all the sheep to stand in one line, अगर आप चाहते हैं सब भेड़ एक पंक्ति में खड़े हो जाएं, the first sheep you make it stand. पहले भेड़ को खड़ा करते हैं, Then you make the second sheep फिर stand. दूसरे को उसके पीछे खड़ा करते हैं, When you come to make the third sheep stand in the same line, और जब आप तीसरे को उसी पंक्ति में खड़ा करते हो, the first and second are doing something else. पहला और दूसरा भेड़ कुछ और ही करने लगता है। So don't keep policies like our denomination, our style, our cloth, our way of walking, nothing like that. और ऐसा कुछ भी नियम मत बनाओ कि हमारे संप्रदाय में ऐसा है, हमारे वस्त्र पहनने का ऐसी आदत है, हम ऐसे गाते हैं, हम ऐसा करते हैं। Our common reference is the word of God. हमारा जो सामान्य जो विषय है वह है परमेश्वर का वचन। So whatever Bible says we follow, that's all. तो जो भी बाइबल कहती है उसका अनुकरण करेंगे हम। Every sheep has an individual need. और हर एक भेड़ का एक व्यक्तित्व जरूरत होती है। Just ensure those needs are taken care. बस ये देखो कि उनकी जरूरत को आप पूरा करें। In many places, people think pastors has to bring the new person. और कई जगह पर ऐसा सोचते हैं पासवान को ही जाकर नए लोगों को लेकर आना है अंदर। The sheep should give birth to the new one, or the shepherd should give birth. और क्या भेड़ को बच्चे पैदा करने हैं या उस चरवाहे को बच्चे पैदा करने हैं? Sheep begets sheep. और भेड़ ही भेड़ को जन्म देते हैं। Glory be to God. परमेश्वर की महिमा हो। So what the shepherd has to तो do? इस चरवाहे को क्या करना है? Keep feeding the sheep and leave them. और भेड़ों को बस पोषण देते रहना और छोड़ देना है। The sheep will know what to do. और भेड़ जानेगा कि वह क्या करना है The उसे। sheep will understand what to do. और वह समझ जाएंगे उन्हें क्या करना है। Glory be to God. परमेश्वर की महिमा हो। Recently, when I was seeing some of my students, और कुछ समय पहले जब अपने विद्यार्थियों को मैं देख रहा था, now they were sincerely praying in the morning, praying in the evening. सुबह को बहुत ही सच्चाई से प्रार्थना कर रहे थे, शाम को प्रार्थना कर रहे थे। I never told them. मैंने नहीं कहा उन्हें। They asked me, and some people, they saw me pray. कुछ लोगों ने देखा कि मैं प्रार्थना ऐसे कर रहा था। And sometimes I'm also not able to pray 3 times. कभी कभी मैं भी 3 बार नहीं कर पाता हूँ। Sometimes I pray only 1 time. कभी कभी सिर्फ 1 बार कर पाता हूँ। But my students are praying more number of times. लेकिन मेरे विद्यार्थी मुझसे ज्यादा वो 3 बार प्रार्थना करते हैं। I did not go to anybody and say, you have to pray like this, you have to pray 3 times. I never told. मैं किसी के पास जाकर मैंने नहीं कहा तुम्हें इस प्रकार 3 बार प्रार्थना करनी है। Seeing me, they asked the prayer. और मुझे देखकर उन्होंने खुद कहा कि ये प्रार्थना मुझे सिखाइए। And they started praying. और उन्होंने शुरू कर दिया। My dear child of God, मेरे प्रिय परमेश्वर की संतान, the best thing what a shepherd can do, और सबसे उत्तम बात जो एक चरवाहा कर सकता है, feed the sheep, leave them, they will understand what to do. भेड़ों को पोषण देकर उन्हें छोड़ दो, वह खुद समझेंगे उन्हें क्या करना है। Glory be to God. परमेश्वर की महिमा हो। Now it is important that the shepherd has to protect the sheep from danger. और ये मुख्य है कि चरवाहे को खतरों से उन भेड़ों को बचाना है। Satan's job is he comes and attacks the body of Christ. और शैतान का काम यही कि वह मसीह की देह को आकर आक्रमण करता है। So what is important? तो क्या मुख्य है? The sheep shed is important. और जो रहने का स्थान, जो एक शेड है भेड़ों के लिए, वह जरूरी है। What is that? और वह क्या है? Church. कलीसिया। That is the sheep shed. और वही है भेड़ों का स्थान। In much of the times in the Middle East, caves are the shed. और मध्य पूर्वी में कई जगह पर गुफाएं होती हैं जो जहां भेड़ रहती हैं। So the shepherd takes all the sheep inside the cave, तो चरवाहा उन सबको उस गुफा के अंदर ले जाता है। and at the entrance, the shepherd himself lies down and he becomes the door. और उस गुफा के प्रवेश के पास
वह चरवाहा खुद बैठकर उनका द्वार बन जाता है। In the night when the sheep is sleeping inside the cave, और रात को जब भेड़ उस गुफा के अंदर सोती है, the shepherd she sleeps just on the door. और वह चरवाहा उसके प्रवेश स्थान के पास वह बैठा होता है। So now nobody can go inside or come outside. कोई भी बाहर नहीं जा सकता, कोई भी अंदर नहीं आ सकता। And you know the statement what Jesus has told? और आपको मालूम है यीशु मसीह ने क्या कहा इस विषय में? He said, I am the door. उन्होंने कहा मैं ही द्वार हूँ। So what is Jesus telling? यीशु मसीह क्या कहते हैं? I am the protection. मैं ही तुम्हारी सुरक्षा हूँ। I am there. Nobody can come and touch you without my knowledge. और मैं हूँ, कोई भी आकर तुम्हें छू नहीं सकता बिना मेरी अनुमति के। Glory be to God. परमेश्वर की महिमा हो। We all remember John 10:10. हम सब यूहन्ना 10:10 को हम याद करते हैं। Can we take that verse? क्या हम उस वचन को पढ़ेंगे? After reading, I am going to ask you a question. और ये पढ़ने के बाद मैं आप सबसे एक सवाल करने वाला हूँ। यूहन्ना का 10:10। Yes. चोर किसी और काम के लिए नहीं, परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाएं और बहुतायत से पाएं। Glory be to God. परमेश्वर की महिमा हो। Now my question to you is, अभी मेरा सवाल आपसे ये है, who is the thief? चोर कौन है? Please raise your hands if you know the answer. अगर आप उत्तर जानते हैं तो हाथ उठाइए। Who is the thief? चोर कौन है? Okay. जो दूसरे रास्ता की ओर से आता है। Benny has given a fantastic answer. और पास्टर बेनी ने बहुत ही एक सुंदर उत्तर दिया। What about others? दूसरों का क्या? Anybody else? कोई और उत्तर देना चाहेंगे? No, Benny has covered everything. पास्टर बेनी ने सब बता दिया। Glory. दूसरे रास्ते से जो आते हैं सर। Yes, very good. बहुत अच्छा सिस्टर। So who is that person? कौन है वो? दूसरे रास्ते से आ रहे हैं वो कौन है? Who is the person who comes through the other way? First I want to tell you, पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, it is not Satan. ये शैतान नहीं है। It is another one pastor. ये एक और पासवान है। Do you understand? क्या आप समझ रहे हैं? That pastor is looking only to benefit from you. और ये सिर्फ आपसे अपना लाभ देखना चाहते हैं। My dear child of God, मेरे प्रिय परमेश्वर की संतान, today many people are looking at the crowd as benefit. और आजकल लोग जो हैं उस भीड़ को एक हानि, मतलब वो देखते हैं कि उसमें क्या लाभ उन्हें हो सके। They are not thinking that this group of people has to be cared, this group of people has to grow. They are not thinking. और ऐसा नहीं सोचते कि इन लोगों का विकास होना है, इन लोगों को मुझे संभालना है। My dear child of God, मेरे प्रिय परमेश्वर की संतान, we have to identify this shepherd who has come through the wrong route. और हमें उस चरवाहे को खोजना है, उनको जानना है जो गलत रास्ते से अंदर आया है। Let us turn our Bible to John chapter 10 verse 12 to 13. यूहन्ना का 10 उसका 12 और 13 पढ़ेंगे। Yes. John 10 12 to 13. मजदूर जो ना चरवाहा है और ना भेड़ों का मालिक है, भेड़िए को आते हुए देख भेड़ों को छोड़कर भाग जाता है और भेड़िया उन्हें पकड़ता और तितर बितर कर देता है। वह इसलिए भाग जाता है कि वह मजदूर है और उसको भेड़ों की चिंता नहीं। Glory be to God. परमेश्वर की महिमा हो। So my dear child of God, there is a shepherd who wants to come and take the sheep. और ऐसा एक चरवाहा है जो आकर भेड़ों को वह चुराना चाहता है। He is not the own person. और वह अपना, उसका अपना नहीं है। He is a person who is hired. और वह जो भाड़े पर लिया गया है, मजदूर है।
If there is a problem, that person will run away. अगर कोई समस्या आए तो वो भाग जाएगा. Now, that person will not come and stand when there is a problem. और जब कोई समस्या आए वो आकर खड़े नहीं होगा. My dear child of God, मेरे प्रिय परमेश्वर की संतान, the Lord is my shepherd. यहोवा मेरा चरवाहा है. I shall not be in any want. मुझे कुछ घटी न होगी. Glory be to God. परमेश्वर की महिमा हो. Now we are going to, from now on, the message will start from Psalm 23. और यहाँ से भजन 23 से ये वचन आगे बढ़ेगा. Glory be to God. परमेश्वर की महिमा हो. So, as it is, the time is now 10 o'clock. अभी 10 बज चुके हैं. I think I will stop at this point and continue Jehovah Ra'ah in the next teaching. और यहाँ पर रुककर हम इसको आगे बढ़ाएंगे अगले हमारी आराधना में. So far, whatever we have spoken, you can take it as part 1 of Jehovah Ra'ah. और अब तक जो हमने देखा उसे यहोवा राह का पहला भाग आप ले सकते हैं उसे. Part 2 I will give you in the next teaching. और इसका अगला भाग हम अगले आराधना में देखेंगे. Glory be to God. परमेश्वर की महिमा हो. The shepherd should be a true shepherd. और चरवाहा को सच्चा चरवाहा होना है. The Lord is our true shepherd. और यहोवा मेरा सच्चा चरवाहा है. And in this world, God has given us a person who will temporarily take care of us. और इस संसार में एक अस्थाई मनुष्य को नियुक्त करते हैं जो हमारी देखभाल करता है. The only job of the shepherd is to give you food and water. उस चरवाहे का सिर्फ एक मुख्य काम है, वह है तुम्हें पोषण और तुम्हें जल देना. And the work of the shepherd is to give you protection. और उसका काम है कि आपको सुरक्षा दे. Glory be to God. परमेश्वर की महिमा हो. And pray to God that God, I should get good food and good water always in this world. और आप ऐसा प्रार्थना करें कि प्रभु मुझे हमेशा अच्छा पोषण, अच्छा जल मिल पाए इस संसार में. Shall we close our eyes in prayer? क्या हम अपनी आंखों को बंद करेंगे? Heavenly Father, स्वर्गीय पिता, thank you for speaking to us. हमसे बात करने के लिए धन्यवाद प्रभु. Yehovah Roi, यहोवा रोई, thank you for taking care of all my needs. मेरी सब जरूरतों को देखने के लिए आपका धन्यवाद करता हूँ. Protect all your sheep. अपने भेड़ों को आप संभालें परमेश्वर. As you give them food, जैसे आप उन्हें पोषण देते हैं प्रभु, grant them protection. उन्हें सुरक्षित रखें परमेश्वर. You lead them. आप उनकी अगुवाई करें प्रभु. Let them not go in any other route. और वह किसी और मार्ग पर ना चले जाएं. Thank you for blessing us today. और आज हमें आशीषित करने के लिए धन्यवाद प्रभु. Cover everyone under your blood fence. और हर एक को अपने लहू की भाग में आप छुपा कर रखें. Your grace rest upon them. आपका अनुग्रह उन पर रहे. In Jesus' matchless name we pray unto thee, Father. यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं स्वर्गीय पिता. Amen. आमेन.